So we are continuing our ongoing topic, principles of inheritance and variation. तो इस चैप्टर में अभी तक के हम लोगों ने जो स्टडी किया है वो है मेंडेलियन इनहेरिटेंस हम लोगों ने स्टडी किया, और कुछ नॉन मेंडेलियन टॉपिक्स भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, multiple allele, pleiotropy. So these are the few topics which we have already studied in the previous lecture. One more topic from the Mendelian inheritance side is remaining. It is the back cross and test cross. Capital TT. When gametes are formed here, there are two types of gamete will be formed, capital T and small t, and since it is homozygous tall, so only one type of gamete is formed.
or all the gamete will contain the dominant allele T. When fertilization takes place, this will become capital T, and this will be the capital T and small t. So as now we are observing here, this is the F1 tall plant and this is the parental tall plant. The resultant cross, the individuals which are produced as a result of this cross, this will be the tall capital T homozygous tall, and this is also tall plant. So what we are observing here, two tall plants are crossed, one F1 tall and one parental tall, and what we get, all the progeny are tall. सारे के सारे इंडिविजुअल यहाँ पर जो हमको मिल रहे हैं, ऑफस्प्रिंग्स जो मिल रहे हैं, ये सब भी जो है वो टॉल है. सो इट इज सिंपली अ बैक क्रॉस. देन कम टू द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी. सेकेंड जो पॉसिबिलिटी है, ये वाली पॉसिबिलिटी, F1 टॉल को जो है उसके रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करेंगे हम लोग. So this is F1 tall capital T small t, it is crossed with its homozygous recessive parent. This is F1 tall and this is the parental dwarf. Now यहाँ पे जो है वो दो गैमेट्स बनेंगे. यहाँ पर सारे के सारे गैमेट्स स्मॉल टी टाइप के बनेंगे. दिस इज कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज स्मॉल टी स्मॉल टी. नाउ व्हाट वी गेट हियर इन द offspring generation, all these plants they are tall because of the presence of one dominant allele, and all small t plant will be always dwarf. So here we can see that in the offspring generation 50% plants are showing dominant feature and remaining 50% plants are showing recessive feature. So we are getting here the ratio of 1:1. So actually both of these are the back cross, but this particular type of cross is called as the test cross. So simply the back cross means the cross in which F1 individual is crossed with any one of its parental plant, और the F1 इंडिविजुअल को अगर हम लोग उसके किसी भी एक पेरेंट से अगर क्रॉस करते हैं तो उसको हम लोग बैक क्रॉस बोलते हैं. और यहाँ पर जो है ये वाला क्रॉस हम लोग देख रहे हैं, दिस इज द टेस्ट क्रॉस. सो टेस्ट क्रॉस के लिए कंडीशन फिक्स है, F1 टॉल प्लांट या F1 इंडिविजुअल को उसके रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करना. सो टेस्ट क्रॉस इज डिफाइंड एज व्हेन F1 प्लांट इज बैक क्रॉस्ड विथ इट्स recessive parent, then it is called as the test cross. तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बैक क्रॉस जो है ये दोनों ही बैक क्रॉस हैं, लेकिन इन दोनों में से जो है ये वाला क्रॉस जो है वो सिर्फ टेस्ट क्रॉस है, क्योंकि टेस्ट क्रॉस के लिए कंडीशन है. क्या कंडीशन है? पेरेंटल जो रिसेसिव प्लांट है उससे क्रॉस करना F1 को. सो व्हेन F1 इज क्रॉस्ड विथ इट्स recessive parent, then only it is called as the test cross. Otherwise both of these two cross they are the back cross. So we can say the test cross is also a type of back cross. So that's why it is said that all the test crosses are the back cross, but all back cross is not necessary a test cross. सारे टेस्ट क्रॉस जो है वो बैक क्रॉस तो होंगे, क्योंकि बैक क्रॉस की डेफिनेशन तो सिर्फ इतनी सी है, F1 इंडिविजुअल को उसके दोनों पेरेंट में से किसी भी पेरेंट से क्रॉस करना. और टेस्ट क्रॉस के लिए जो है कंडीशन है जहां पर हम लोग F1 इंडिविजुअल को उसके रिसेसिव पेरेंट से ही क्रॉस करेंगे.
एक्सपेरिमेंट्स दे वर परफॉर्म इन 1856 और 7 ईयर्स तक के उसने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे और फिर उसके बाद में कुछ ईयर्स के बाद में उसकी डेथ हो गई थी। तो उसका जो वर्क था, मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट जो उसने परफॉर्म किए थे उसको उसने लिखा भी था, उसका जो पूरा पेपर था उसको आगे 35 और 40 ईयर्स तक के जो है वो किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। अर्ली 1900 के टाइम पर, यानी जब 20th सेंचुरी की बिगिनिंग हुई, तो उस टाइम पर जो है 3 अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने उसके वर्क को फिर से रीडिस्कवर किया। सो दीज 3 साइंटिस्ट, जो 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने उसके वर्क को रीडिस्कवर किया था, इनके नाम हमको जो है वो याद रखना है, कभी पेपर में पूछता भी है। सो दे आर डी वेरिस, होगो डी वेरिस, कार्ल कोरेंस and Eric Shermark. So these were the 3 scientists who rediscovered or who discovered the Mendel's work इंडिपेंडेंटली। तीनों ने जो है वो मेंडल के ही वर्क को रिडिस्कवर किया और उसके बाद में इन्होंने फिर उसको पब्लिश किया। तो जब उसको पब्लिश किया तो एक बुक के फॉर्मेट में उसको पब्लिश किया था जिसका नाम था एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। पर इन्होंने जो है वो पूरा का पूरा जो क्रेडिट था वो मेंडल को दिया था, मतलब रिडिस्कवरी इनकी थी लेकिन इन्होंने उसको मेंडल के नाम से उसके बुकलेट को पब्लिश किया था। तो फिर जो है अर्ली 20th सेंचुरी के टाइम पे दुनिया ने मेंडल को पहचाना और मेंडल की उस वक्त जो है वो डेथ हो चुकी थी। उसके बाद जब उसके वर्क की रिडिस्कवरी हुई तो फिर उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स का जो है वो टाइटल दिया गया। सो मेंडल के रिडिस्कवरी के बाद में, मेंडल के वर्क की रिडिस्कवरी के बाद में फौरन ही जो है फिर क्रोमोसोम के ऊपर जो है रिसर्च स्टार्ट हो गया। अब इसमें 1902 के टाइम पर 1902 में 2 साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने क्रोमोसोमल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया। क्रोमोसोमल थ्योरी इन 1902 by Walter Sutton and Theodore Boveri. So these were the scientists who formulated the chromosomal theory. तो chromosomal theory को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इनके नाम याद रख लो 1902 में। तो इस थ्योरी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो बेसिक पॉइंट्स इसके अंदर जो है हम लोग इसके पहले भी जो है लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़े हैं कहीं ना कहीं क्रोमोसोम्स के बारे में। सो बेसिक पॉइंट्स ये हैं कि गैमेट्स जो होते हैं दे कंटेन द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सो द इंडिविजुअल जो होता है उसके जो बॉडी सेल्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज सोमेटिक सेल्स, एंड दो सोमेटिक सेल्स इन ईच सेल द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर। क्रोमोसोम जो है वो पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं हमारे बॉडी सेल्स में या सोमेटिक सेल में। व्हेन स्पेशल टाइप ऑफ सोमेटिक सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन व्हिच आर कॉल्ड एज गोनैड्स। तो गोनैड्स के अंदर जो स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स या सोमेटिक सेल्स जो होते हैं दे विल प्रोड्यूस द गैमेट्स, एंड गैमेट्स आर प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, सेग्रीगेशन होता है क्रोमोसोम का, और फिर उसके बाद में जो गैमेट्स होते हैं वो हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैरी करते हैं अपने पेरेंटल सेल के कंपैरिजन में। और फिर जब फर्टिलाइजेशन होता है सो फर्टिलाइजेशन इट रीस्टोर्स द डिप्लॉयड कंडीशन। डिप्लॉयड कंडीशन को फर्टिलाइजेशन की वजह से जो है वो रिटर्न आ जाती है जनरेशन में। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स का जो बिहेवियर होता है वो जीन के बिहेवियर के पैरेलल होता है, क्योंकि बाद में ये मालूम पड़ा कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं दे आर द कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी। एलील्स और जो जीन होते हैं दे आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होते हैं। क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है, सेग्रीगेशन मतलब
पेयर एंड दिस इज द अनदर पेयर। सो 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर दिखाए हुए हैं। फिर उसके बाद में G1 के बाद में नेक्स्ट जो फेज आती है, हम लोगों ने स्टडी किया 11th में उसको सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल वाले टॉपिक में, एस फेज। तो G1 और G2 फेज के बीच में यहाँ पर बीच में कहीं पर जो है एक और फेज होती है जिसको हम लोग कहते हैं एस फेज। तो रिकॉल करो कि एस फेज में कौन से इवेंट या कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। तो एस फेज में हमने स्टडी किया वहां पर ड्यूरिंग एस फेज द क्रोमोसोम, ये जो क्रोमोसोम होते हैं इसके ऊपर जितना भी डीएनए लोकेटेड होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट डीएनए गेट रेप्लिकेटेड। पूरा का पूरा डीएनए जो है यहाँ पर रेप्लिकेट होता है या डुप्लीकेट होता है। सो डीएनए डुप्लीकेशन और डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन एस फेज। तो एस फेज में जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तो यहाँ पर देखो ये सिंगल क्रोमेटिड दिखाया हुआ है और ये भी एक क्रोमोसोम का जो है वो एक सिंगल क्रोमेटिड है। जब डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो सेल जो है वो नेक्स्ट साइकिल में इंटर होता है एंड दैट साइकिल दैट फेज ऑफ द साइकिल इट इज कॉल्ड एज द G2 फेज। उसको हम लोग सेकेंड ग्रोथ फेज बोलते हैं या सेकेंड गैप फेज भी बोलते हैं। पहले उसको बोलते थे सेकेंड गैप फेज, अभी उसको सेकेंड ग्रोथ फेज बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये एक सिंगल क्रोमेटिड है, ये वाला भी एक सिंगल क्रोमेटिड है क्रोमोसोम का, होमोलोगस क्रोमोसोम का। अब यहाँ G2 में हम लोग देख सकते हैं इसके जैसा एक और क्रोमेटिड यहाँ पर आ गया है। तो ये कैसे आ गया, ये दो सेम जो है वो क्रोमेटिड आ गए, यहाँ पे दोनों हेल्ड हैं बीच में इस पर्टिकुलर पॉइंट से, मतलब उसके सेंट्रोमियर से हेल्ड हैं। सो ये हुआ है ड्यू टू द रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है वो एस फेज में डुप्लीकेट हुआ है, पूरा रेप्लिकेट हुआ और उसकी वजह से यहाँ पर जो एक सिंगल क्रोमेटिड था, अब यहाँ पर दो क्रोमेटिड एक दूसरे से हेल्ड है, ज्वाइंटेड है बाय मींस ऑफ दिस पॉइंट, इट इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द बाइवेलेंट। तो यहाँ पे बाइवेलेंट फॉर्मेशन हो गया है। अब ये वाले क्रोमोसोम का भी यहाँ पर बाइवेलेंट फॉर्मेशन हुआ, इसका भी बाइवेलेंट हुआ, फिर ये इसका बाइवेलेंट हो गया, ये वाला इसका बाइवेलेंट है, एक जैसे कलर से यहाँ पर शो किया हुआ है। देन द वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट टेक्स प्लेस इन द एनाफेज ऑफ द मियोसिस 1। सो एज वी ऑल नो कि मियोसिस 1 के एनाफेज में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, दोज होमोलोगस क्रोमोसोम्स दे गेट सेग्रीगेटेड। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेग्रीगेट होंगे यहाँ पर। सो इन द एनाफेज ऑफ मियोसिस 1 this homologous chromosome will get segregated from this one and this homolog will get segregated from this one। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको इस तरह से शो किया एरो मार्क से, ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो है वो सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा एक, और उसका डॉटर सेंट्रियोल यहाँ पर प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर ये स्पिंडल फाइबर्स बने होंगे एंड दोज स्पिंडल फाइबर विल पुल दीज होमोलोगस क्रोमोसोम टू द अपोजिट पोल। तो ये सेग्रीगेशन है, इसको हम लोग सेग्रीगेशन या कि इसी को हम लोग कहते हैं डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। सो दिस इज द डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। देन अब ये डिसजंक्शन हो गया, फिर ये वाला और ये वाला क्रोमोसोम दोनों इस एक वहां जो डॉटर सेल इसके बाद बनेगा वहां पहुंच जाएंगे, ये दोनों दूसरे डॉटर न्यूक्लियस में पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट जो इवेंट है उसके बाद में वो है मियोसिस 2 के एनाफेज में। एनाफेज ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि प्रोफेज और मेटाफेज में जो है वो सेम प्रोसेसेस होते हैं जैसा कि माइटोसिस में होता है। तो यहाँ पे मियोसिस 2 के एनाफेज में हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला पूरा, ये दोनों जो है वो इसके अंदर दिखाए हुए हैं और ये दोनों जो है वो इसके अंदर दिखाए हुए हैं। अगेन यहाँ पर जो है मियोसिस 2 के अंदर, मियोसिस 2 के एनाफेज में ये यहाँ पे सेंट्रोमियर जो है यहाँ पर डिवाइड होगा। तो सेंट्रोमियर का डिवीजन हो गया, इसके सेंट्रोमियर का, इसके और इसके सभी के सेंट्रोमियर का डिवीजन हो गया। और सेंट्रोमियर के डिवीजन होने के बाद में ये जो पूरा क्रोमेटिड है, ये वाला क्रोमेटिड फिर एक सेल के न्यूक्लियस में जाएगा और इसका जो दूसरा क्रोमेटिड है वो दूसरे सेल के न्यूक्लियस में जाएगा। अब हम इसको जो है वो फिर क्रोमेटिड नहीं बोलेंगे, इसको हम क्रोमोसोम बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका अपना सेंट्रोमियर है और यहाँ पर इसका अपना सेंट्रोमियर है।
सेम ऐसे ही जो है इस वाले क्रोमोसोम के पेयर में भी हम देख सकते हैं कि ये दोनों क्रोमेटिड सेपरेट हुए हैं और ये दोनों डॉटर न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। सेम इवेंट यहां पर भी हो रहा है इसके अंदर भी। तो फाइनली अपने को आखिरी में मियोसिस के, अगर आपको याद होगा, रिकॉल कर सकते हो कि मियोसिस के एंड में वी ऑब्टेन 4 सेल्स, हमको जो है वो आखिरी में 4 सेल्स मिलते हैं। एंड दोज 4 सेल्स later on by some transformational changes, थोड़ा चेंज होने के बाद में those cells they are converted into gametes, वो gametes में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पर हम देखो ये 4 सेल्स जो देख रहे हैं, हर एक के अंदर हम लोग क्रोमोसोम देख रहे हैं। इसके कंपेयर अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पर हमको हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलते हैं। यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था 1 2 3 4 मीन्स 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम से स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमको मिल रहा है। तो दीज आर द 4 हैप्लॉइड सेल्स। ये जो 4 की 4 सेल्स हैं दे आर द हैप्लॉइड सेल। तो यहाँ जो है वो एक्चुअल में इस डायग्राम का जो मेन इंटेंशन है वो यही है कि क्रोमोसोम्स जो है वो सेग्रीगेट कैसे होते हैं। जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, जब जर्म सेल्स फॉर्म होते हैं, तो क्रोमोसोम का जो है वो सेग्रीगेशन कैसे होता है। इसी को मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोला था, लेकिन मेंडल ने जो है वो क्रोमोसोम को इमेजिन करके नहीं बोला था। उसके हिसाब से जो है वो कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते होंगे न्यूक्लियस के अंदर, और एक जैसे दिखने वाले जो है वो पार्टिकल 2 बार होते होंगे, और फिर जब सेग्रीगेशन होता होगा, मियोसिस होता होगा, तो वो दोनों पार्टिकल एक दूसरे से अलग हो जाते होंगे। आगे जाकर के ये मालूम पड़ा कि पार्टिकल जैसी तो कोई चीज नहीं होती है, बल्कि ये ऐसे स्पिंडल शेप्ड जो है वो बॉडीज होते हैं, जिसको नाम दिया गया था क्रोमोसोम्स। सो इसको स्टेनिंग टेक्निक से आइडेंटिफाई किया था। और इसको जो है क्रोमा का मतलब होता है कलर और जोमा मतलब होता है बॉडी। सो दे आर द कलर बॉडीज। जब स्टेन डेवलप हुआ तो फिर ये मालूम पड़ा कि दे कैन बी स्टेन बाय सम स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्टेन। तो न्यूक्लियर स्टेन की मदद से उसको स्टेनिंग करके आइडेंटिफाई किए थे। और जो वर्ड क्रोमोसोम था इट वाज गिवन बाय वाल्डियर। वाल्डियर नाम का साइंटिस्ट था, उसने क्रोमोसोम का वर्ड इंट्रोड्यूस किया था। तो इस डायग्राम में हमने देखा कि आखिरी में जो 4 सेल्स अपने को मिल रहे हैं, ये 4 सेल्स जो है दे आर कॉल्ड द जर्म सेल्स। आगे जाकर के ये जर्म सेल्स जो है वो गैमेट्स बनाएंगे। अब अगर ये पूरा प्रोसेस जो है वो मेल की बॉडी में हो रहा है तो ये आगे जाकर के स्पर्म्स बनाएंगे, और अगर ये पूरा प्रोसेस जो है फीमेल की बॉडी में हो रहा है तो इससे आगे जाकर के फिर ओवम बनेगा। और स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस, ये दोनों प्रोसेस हमको जो है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में स्टडी करने हैं। तो हमको पता है कि स्पर्म्स तो सभी से बन जाएंगे अगर मेल के
यहाँ पर येलो के साथ में रेड, येलो के साथ में रेड, तो ये 4 जर्म सेल के अंदर कैसा कॉम्बिनेशन है हमारा। ये जो कलर है ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए दिया हुआ है, ऐसा कोई क्रोमोसोम का अपना कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता, उसको स्टेनिंग करने के बाद में उसका कलर आता है, पर ये यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम में जो है ये कलर दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ पर ऑरेंज के साथ में ग्रीन का सेग्रीगेशन और येलो के साथ में रेड का सेग्रीगेशन हो रहा है। ये एक चीज जो है वो हमको याद रखना है, जो कि हमको वहां पर कोरिलेट करना रहेगा सेकेंड वाले डायग्राम में। तो ऑरेंज के साथ में ग्रीन सेग्रीगेट हो रहा है, मतलब ऑरेंज के साथ में इस तरफ से ग्रीन वाला जा रहा है और इसके साथ भी ग्रीन जा रहा है। यहाँ पर येलो के साथ में रेड, येलो के साथ में रेड जा रहा है। हो गया ये इतना, तो ये पहली पॉसिबिलिटी हो जाती है। अब दूसरे वाले डायग्राम में हम लोग देखेंगे सेकेंड पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पर देखो, पहले तो ऊपर जो स्टेटमेंट दिखाया हुआ है वो है 1 लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम। एक लॉन्ग ऑरेंज है और शॉर्ट वाला जो है वो रेड है, यहाँ पर भी वैसे ही था। एंड लॉन्ग येलो, येलो लॉन्ग है और शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम है। और फिर यहाँ मियोसिस 1 में सेग्रीगेशन, ये दोनों साथ में जा रहे हैं, ये दोनों साथ में जा रहे हैं। इस डायग्राम में हम लोग देखेंगे अभी। तो येलो के साथ में ऑरेंज के साथ में यहाँ पर देखे हम लोग, तो ये यहाँ पर रेड गया हुआ है, और येलो के साथ में हम लोग यहाँ देखेंगे तो ग्रीन गया हुआ है। थोड़ा जूम आउट कर दो श्वेता सर। हाँ देखो, ये दोनों को कंपेयर करके देख लो। यहाँ पर ऑरेंज ग्रीन, यहाँ पर ऑरेंज के साथ में रेड है, येलो के साथ में यहाँ पर रेड है, और इस पॉसिबिलिटी के अंदर येलो के साथ में गया हुआ है ग्रीन। और फिर उसके बाद में मियोसिस 2 के एनाफेज में ये इससे अलग हो जाएगा, और ये वाला रेड दूसरे वाले होमोलोगस रेड से अलग हो जाएगा। ऐसे ही येलो येलो से अलग हो जाएगा, और ग्रीन दूसरे वाले ग्रीन होमोलॉग से सेपरेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो 4 जर्म सेल्स बन रहे हैं, तो ये 4 जर्म सेल्स को अगर हम लोग इससे कंपेयर करके देखते हैं तो हमको समझ में आएगा कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसको बोला जाता है। यहाँ पे ऑरेंज के साथ में रेड दिख रहा है और येलो के साथ में सॉरी ऑरेंज के साथ में ग्रीन दिख रहा है और येलो के साथ में रेड दिख रहा है। इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो हमको रिवर्स दिख रहा है, ऑरेंज के साथ में जो है वो रेड वाला आ गया है 2 सेल के अंदर, और येलो के साथ में जो है यहाँ पर ग्रीन वाला चला गया है। तो इसी को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग जो है इस ऑरेंज क्रोमोसोम, ऑरेंज कलर से जो शो किया हुआ क्रोमोसोम है इसको, और ये रेड वाले को, अगर हम लोग दोनों को आपस में कंपेयर करें तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है वो रेड वाले के साथ में ग्रीन वाला ही जाएगा, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। पर इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑरेंज के साथ में इस तरफ से रेड वाला आ गया है, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं येलो के साथ में रेड गया। तो इसको देख करके अगर कोई ये सोचे कि जहां जहां पे जिस सेल में येलो वाला क्रोमोसोम जाएगा तो दूसरे वाले होमोलॉग से जो है वो रेड वाला ही जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं तो एक होमोलॉग पेयर का और येलो वाला आ गया, तो दूसरे होमोलॉग का जो है यहाँ पर इसके साथ में येलो के साथ में ग्रीन आ गया है, और यहाँ पर येलो के साथ में रेड है, और यहाँ पर जो है वो ऑरेंज के साथ में ग्रीन आ गया, और यहाँ पे ऑरेंज के साथ में जो है वो रेड आ गया है। तो इसी को बोला जाता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब कि क्रोमोसोम्स के जो पेयर हैं वो सेपरेट होते हैं, और फिर इंडिविजुअली या इंडिपेंडेंटली हम बोलेंगे कि दूसरे क्रोमोसोम के साथ में जर्म सेल्स के अंदर इंटर होते हैं, और फिर यही जर्म सेल्स जो हैं ये आगे जाकर के फिर गैमेट्स बनाते हैं। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ये है कि आगे की जनरेशन में जो है वो वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशन लाने के लिए और भी बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। दिस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर। एक ये फैक्टर है, ऐसे ही म्यूटेशन होता है उसकी वजह से भी वेरिएशंस आते हैं, और ऐसे ही क्रॉसिंग ओवर होता है वो उसकी वजह से भी वेरिएशन आते हैं। कैन यू रिकॉल एट विच फेज ऑफ मियोसिस द क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस? क्रॉसिंग ओवर जो है वो मियोसिस की कौन सी फेज पर होता है, जरा सोचो और रिकॉल करो, क्योंकि इसको भी हमने जो है वो सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल में स्टडी किया है। सो मियोसिस 1 के पैचिटीन स्टेज में, प्रोफेज के पैचिटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर जो है वो प्रोसेस होता है। उसकी वजह से भी एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होने की वजह से आगे की जनरेशन में जो है वेरिएशंस आ जाते हैं। तो यहाँ तक के जो है वो हम लोगों ने इसको स्टडी किया है। नेक्स्ट हमको जो स्टडी करना है वो है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के, देखते हैं उसको।